میں ہوں آپ کے ساتھ عظمیٰ اعجاز خان، اور میں اور میری ٹیم آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ نیوز کیفے آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پہ میں آپ سب کو صبح کا سلام، صبح بخیر۔ جو لوگ اپنے گھروں میں موجود ہیں اس وقت، اگر انہوں نے ٹی وی سیٹس آن نہیں کیے ہیں تو اپنے ٹی وی سیٹس آن کر لیے ہیں۔ جو لوگ اٹھ چکے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ناشتے اور کھانے کی تیاریوں میں لگتے ہیں۔ جو صبح کا وقت ہوتا ہے بچے اسکول جا چکے ہوں گے، لیکن یہ سوچنے کا وقت ہوتا ہے اور یہ سوچا جا رہا ہوتا ہے کہ آج کیا پکے گا۔ اور ڈیفینیٹلی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی اپنے پروگرام میں اس چیز کو شامل ضرور کروں کہ جہاں پہ ایک چھوٹا سا سیگمنٹ اس حوالے سے ہوگا کہ آج آپ نے کیا پکانا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو پکانے کے لیے آسانی ہو، کم خرچ بالا نشین، کم پیسوں میں اچھا کھانا بنائیے۔ چاہے وہ ایک بڑے مزے کی بات ہے، میں ایک بات کہتی ہوں کہ اگر آپ کو چکن کھانی ہے تو اس کا جو نیم البدل ہے وہ ہے سویابین۔ سویابین وہ سبزی ہے جس کو آپ چکن کے نیم البدل کے طور پر اپنی زندگیوں میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے کولیسٹرول کو، آپ کی باڈی کو بہت تقویت دیتا ہے۔ اور جو آج کل کے چکن ہم کھا رہے ہیں وہ شاید ہمارے لیے، ہماری صحتوں کے لیے مضر صحت ہے، کیونکہ اس کے اندر اتنے پیسچرائز اور اتنے اینٹی بایوٹکس دے کے، اور جو فیڈ کھلائی جاتی ہے مرغیوں کو وہ اتنی سپیڈ والی ان کی جو گروتھ کرتی ہے، اس کی وجہ سے وہ ہمارے ہارمونز جو ہیں ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں، اور ہماری جو انٹرنل ہیلتھ ہے وہ اس پہ افیکٹ آتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر کھائیں تو کم کھائیں، لیکن دیسی مرغی کا استعمال کریں۔ گوشت کھائیں تو صاف ستھرا گوشت استعمال کریں۔ بیسک اپنے آپ کو شفٹ کیجئے ویجیٹیبلز کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، اور پروٹین حاصل کرنا ہو تو دالوں کا سہارا ضرور لیجئے۔ اور اس کی چھوٹی چھوٹی سی جو ریسیپیز ہیں وہ میں آپ کو بتایا کروں گی ہر دن، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کروں گی کہ آج آپ کو کس طرح سے اپنے دن کا آغاز کریں۔ ناظرین، آپ نے بہت زیادہ سنا اور دیکھا ہوگا کہ لوگ زوڈیک سائن کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج آپ کا ہفتہ ایسا رہے گا، آج آپ کو یہ کرنا چاہیے، اگلے ہفتے آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے دن کا آغاز کریں، صدقہ نکالیں۔ جس رستے سے آپ گزر رہے ہو نا، بے شک آپ کے پاس 5 روپے ہیں، مانگنے والوں کو اس گاڑی سے یا اس جگہ سے 5 روپے دیں اور اس کے ساتھ نکلیں، آپ کی زندگی آسان ہوگی۔ اور جو صدقہ دیا جاتا ہے، جو آپ کے گھر میں جو بھی چھوٹی موٹی چیزوں، جس ہاتھ سے، چاہے پرندوں کو دینا ہو، چاہے باجرے کا ہو، جو بھی ہو، یا پانی رکھنا ہو، چھوٹی موٹی یہ چیزیں کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول کرنے والے وہ اللہ کی ذات ہے، اور ہم صرف انسان ہیں، ہم صرف بات کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے نا، تو عبادات کو شامل کیجئے۔ اور عبادات کا طریقہ، جیسے کہ میں آپ کو روز کہتی ہوں کہ ہم صبح اٹھتے ہیں، اللہ کے بابرکت نام سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، اور دعائیں لیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کو محبتوں کے ساتھ، پیار کے ساتھ ہم رخصت ہوتے ہیں اور انہیں رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ دس از کالڈ عبادت۔ کہتے ہیں کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ وہی کہتے ہیں کہ آپ کی عبادتوں کو تولا جائے گا۔ اس طرف آپ کی عبادتیں ہوں گی اور اس طرف اگر آپ کی زندگی عبادت بن جائے، اگر آپ کی پوری زندگی ہی عبادت نظر آئے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارا وقت مصلی پہ بیٹھے رہیں۔ عبادت کا طریقہ کار یہ بھی ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جب آپ اٹھتے ہیں، فجر کی نماز شروع کرتے ہیں اور آپ عبادت کرتے ہیں، جو آپ اللہ کے لیے جو عبادت کرتے ہیں، وہ آپ کی باڈی کو تقویت دیتی ہے، کیونکہ باڈی کو ہلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ چاہے آپ 5 منٹ کے لیے وہ 4 رکعتیں پڑھ کے اپنی باڈی کو موو کرتے ہیں، اس کا مقصد یہ کہ سائنٹیفکلی آپ کی باڈی جو ہے وہ پروون ہے یہ بات کہ آپ کو اس جگہ پہ اور اس 5 منٹ کے لیے اپنے آپ کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے وہ نماز ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ظہر کی نماز تک کی جو آپ کی عبادات کا سلسلہ وہ لاک کر دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی عبادات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں نکلتے ہیں، باہر جا رہے ہوتے ہیں، خدا حافظ کہتے ہیں، پیار سے جاتے ہیں، اور جس طرح سے آپ ایک نیکی کے کاموں میں لگتے ہیں، کسی کی جان بچانا ہو، کسی کو محبت سے آواز دینا ہو، کسی کی مدد کرنا ہو، یہ سارے حصے عبادات کے ہوتے ہیں۔ اور فجر کی نماز سے لے کے جو عشاء کی نماز تک کا وقت اگر آپ کی جو نیت میں اس نیکی کا عنصر شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ عبادات کے حصار میں ہیں، تو یہ تولا جائے گا۔ آج کے میرے پروگرام کو جو ٹاپک ہے اور جو آج کے میرے پروگرام کے ہیروز ہیں، وہ بھی ان کی زندگی بھی انہی عبادات کا کہیں نہ کہیں کوئی ان کی نیت کا اس میں بڑا حصہ ہے، کہ ان کی نیت کا وہ ثمر ہے جو نظر آتا ہے، اور وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے 25 جانوں کو بچایا۔ نہ صرف ان 25 کو، اپنے بیٹے کی جان تو ڈیفینیٹلی ہر ماں باپ کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 25 جانوں کو بچایا، اور یہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے کیونکہ ان کی نیت بہت پیاری تھی۔ جب نیت اچھی تھی تو یہ ان کی نیت عبادات میں کاؤنٹ ہو گئے، تو جو عبادات کا پلڑا تھا وہ بھاری ہو گیا۔ لوگ ان کو ہیرو کہہ رہے ہیں، لوگ ان کو، لیکن میرے حساب سے انسانیت کا وہ ایک محور پیکر ہے جس نے انسانیت کا وہ سبق دیا، انسانیت کا وہ اصول سکھایا، انسانیت کا وہ سبق سکھایا جو میرے اللہ اور میرے رب کو پسند آ جائے۔ اس حوالے سے ایک پیکج تیار کیا ہے، پہلے پیکج دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کو کچھ دنیاوی بات بھی بتاؤں گی ڈالر کے حوالے سے، کہیں نہیں جائیے گا۔
जी नाज़रीन, पैकेज आपने देखा, लेकिन इस पैकेज की तफसील पे जाने से पहले और अपने बहुत ही मोहब्बत और बहुत खूबसूरत नौजवानों को मिलवाने से पहले जो हमारे हीरोज़ हैं, मैं आपको थोड़ा सा दुनियावी चीज़ें बताती चलूँ। दुनियावी मैं क्यों इसलिए कहती हूँ कि हम इस माशी दुनिया में रहते हैं और इस माश के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपडेट करना इसलिए ज़रूरी होता है। मैं डॉलर और रुपए के हवाले से बताती हूँ कि रुपए की कदर में इस्तेकाम आया है, रुपए की कदर बढ़ी है और डॉलर की कदर में कमी वाक़ हुई है। 13 पैसे की कमी वाक़ हुई है, जिसके बाद डॉलर 285 रुपये 39 पैसे का हो गया है और जो ओपन मार्केट में उसके इस्तेकाम आया है वो 287 पे ही रहा और उसी पे बंद हुआ है। डॉलर के हवाले से मैं आपको मुस्तकिल और मेरी टीम का ये होमवर्क रहता है कि हम आपको कांस्टेंट आपको अपडेट देते रहते हैं कि डॉलर की कदर कितनी गिरेगी और कहाँ तक गिरेगी। एक टाइम आया था कि जो इन्वेस्टर्स से उन्होंने इन्वेस्ट किया पैसा और अभी भी उनके लिए बड़ी एक थ्रेटन है और बहुत सारे जो एनालिसिस किए जा रहे हैं उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने डॉलर ज़ख़ीरा किया है वो होशियार हो जाएं, क्योंकि उनके लिए कोई बहुत अच्छी खबर नहीं है। डॉलर की कदर नीचे आएगी और हमारी भी दुआ यही है कि हमारे मुल्क के इस्तेकाम के लिए, उसकी मईशत के इस्तेकाम के लिए डॉलर को रुपए को मुस्तहकम होना बहुत ज़रूरी है और डॉलर को नीचे आना बहुत ज़रूरी है। जो एक्सपर्ट्स की राय है वो कहते हैं कि असल कीमत जो डॉलर की है वो 240 से भी थोड़ा नीचे है। अब 240 तक आएगी या नहीं आएगी, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ग्रेजुअली आएगी। लेकिन काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि डॉलर जो है वो 287 जो ओपन मार्केट है, जहाँ हमारी जो ओपन मार्केट है उसमें 287 पर मुस्तहकम खड़ा हुआ है, लेकिन जो इंटर बैंक है उसमें उस पर कमी आ रही है। एक टाइम था कि इंटर बैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें कम से कम 30 रुपए का फ़र्क आ गया था। जिस वक्त डॉलर 330 रुपए पर पहुंचा था तो वो 330 रुपए जो थी वो ओपन मार्केट के रेट थे और जो डॉलर के इंटर बैंक मार्केट रेट थे वो 300 रुपए थे। 30 रुपए का डिफरेंस था, लेकिन अब 2 या 2.5 रुपए का डिफरेंस के ऊपर डॉलर चला है, जो कि बहुत ही खुशाइन बात है। जनाब, ये तो खैर हमारी जो सिलसिला है मईशत के हवाले से, कुछ बिज़नेस के हवाले से बात होती है, कुछ इस हवाले से लोगों को इसकी नॉलेज चाहिए होती है ताकि सुबह सुबह वो अपनी ख़रीदो फरोख्त के सिलसिले या जिनको लेना होता है या जिस किसी को बाहर ट्रैवल करना होता है वो देख सकें। अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपने हीरो से जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले मोहम्मद आमिर साहब, आपको बहुत खुश आमदीद कहेंगे। ये वो हीरो हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया उन 25 लोगों को, ये वहाँ पे पहुँचे। ये उन्हीं की ज़बानी से पूछेंगे कि सूरत हाल क्या हुई थी और किस तरह से वो वहाँ पहुँचे और किस तरह से उन्होंने क्विकली अपना जो मेंटल जो उन्होंने उनके दिमाग ने उन्हें फौरी तौर पर क्या इशारा दिया। और ये है हमारे साथ मोहम्मद सुभान, और इनसे भी पूछेंगे कि अंदर की सूरत हाल क्या थी और इनके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था। आप दोनों हजरात को खुश आमदीद कहेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगे, आप ही बताइएगा क्या वक्त था वो और सुभान की ड्यूटी टाइमिंग क्या होते हैं, आप यूजुअली कब जाते हैं और आपका इनके साथ राब्ता कैसे रहता है? राब्ता ऐसे रहता है जब ये निकलते हैं तो मुझे बता कर जाते हैं रात में, यानी 10 से 11 बजे, कभी 9 बजे, जैसे इनको सूटेबल होता है टाइम का। पर ये नाइट करते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, ठीक है। तो उसमें मैं इसलिए एक्टिव रहता हूँ, दिमाग को एक्टिव रखता हूँ सोते वक्त भी, कि मेरा बच्चा बाहर है। मेरा एक बच्चा बाहर है। अच्छा। वो भी बड़े से छोटा वाला। अच्छा। तीसरे नंबर पे, और इतने मैच्योर नहीं है। छोटे ही बच्चे लग रहे हैं मुझे। कितने माशाल्लाह बच्चे हैं आपके? मेरे 5 हैं। अच्छा, बेटे 3 हैं? 4 बेटे, 4 बेटे। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, तो बस इसी हवाले से मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी इंसान को, कोई भी कराची जैसा शहर है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बच्चा है, अभी इतना सीनियर नहीं है बच्चा मेरा, तो मेरे को, मेरी नज़र में तो बच्चे हैं, मेरी नज़र में तो मेरे बच्चे हैं। वैसे भी छोटा है वो। हाँ, तो सब में छोटा यही था उस बिल्डिंग में। जब ये निकला है तो मैंने ही इसको बगल में ऐसे लेकर नीचे रेस्क्यू तक अपना करा है, क्योंकि मुझे पता ये छोटा। और इसकी जब मैंने इसके पैर में देखे, शूज़ भी नहीं थे। अच्छा। अपने शूज तक क्या, बैग कुछ भी नहीं था, एवरीथिंग। असल में जूते वैसे भी फायर पर उतार दिए जाते हैं, क्योंकि मैंने जो सुना है ना, नहीं, जब बच्चे वो काम कर रहे होते हैं, रिलैक्स होते हैं, रात का वो होता है तो बड़े रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं आराम से। नमाज वगैरह भी पढ़ के आते हैं, नमाज फजर का टाइम था। और दूसरी बात ये थी कि इसकी जब कॉल मौसूल हुई तो फिर मैं तो अचानक, इतनी कभी करता नहीं है वैसे। ये मैं आपसे दोबारा शुरू करूँगी, यहाँ से मैं सुभान आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले तो बताइए कि आप कितने अरसे से काम कर रहे हैं और कभी कोई इससे पहले इस किस्म का कोई इस तरह की कोई चीज़ छोटी मोटी हुई है? मैं तकरीबन 6-7 महीने से काम कर रहा हूँ वहीं पे, उसी लोकेशन पे। तो उससे पहले वहाँ पर एक ऑफिस में आग लगी थी, लेकिन कंट्रोल हो गया था, वो बुझा दी थी। लेकिन इससे पहले और इसके अलावा कोई वाक़या हुआ नहीं। अच्छा, तो लेकिन नहीं हुआ, लेकिन जो मेंटेनेंस करते हैं ना बिल्डिंग की, वो लोगों से आप लोगों का राब्ता होता था, क्योंकि मंथली वो मेंटेनेंस चार्ज करते हैं।
तो कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि जैसे जो ऑफिसेज में फायर के वो सिलेंडर्स लगे होते हैं, या कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं? सिलेंडर्स तो मौजूद थे, लेकिन उसको इस्तेमाल करना कैसे था, यूज़ करना कैसे अच्छा, था, अब कैमरास से, मैं बिल्डिंग के सिर्फ प्रोटोकॉल्स की बात कर रही हूँ। जी कैमरास तो हर जगह अच्छा, अब लगे ये हैं। बताइए कि एक टाइम हुआ क्या था, आप क्या कर रहे थे उस जगह पे, और आपको किस वक्त इस चीज़ का एहसास हुआ कि देयर इज समथिंग फिशी? हम लोग का टाइम तकरीबन 5:30 बजे थे, नमाज़ वगैरह पढ़ के हम लोग बैठे थे। एक दोस्त सो रहा था, उसके अलावा एक दोस्त काम कर रहा था, कोई मोबाइल यूज़ कर रहा था। हम 4 बंदे थे, और एक दोस्त ने जाके देखा, पहले आवाज़ वगैरह आ रही थी काफ़ी, उसने आवाज़ लगाई हमें कि बाहर आग लगी है। दूसरा दोस्त गया, उसने देखा, फिर हम लोग ने दूसरे दोस्त को उठाया, फिर साथ भागे हैं हम लोग अलग हो गए थे। वो क्या नाम है, लिफ्ट की साइड चले गए थे, हम लोग आग की तरफ भाग रहे थे, क्योंकि हमें नज़र तो कुछ नहीं आ रहा था, धुआं इतना ज़्यादा हो गया था कि सामने नज़र ही ना आए कि क्या है। अच्छा, तो आग के पास पहुंचे तो हम लोग फिर वापस रिटर्न हुए। हम लोग उनको आवाज़ें लगाई, जो बाकी दोस्त थे उन्होंने हमें आवाज़ लगाई, आवाज़ को मतलब follow आवाज से आप लोग एक दूसरे जी। को पकड़ रहे थे? नज़र नहीं आ रहा था, वहाँ पे लाइट आप जला लें आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। अच्छा, ऐसा माहौल तो ये हलचल नहीं मची वहाँ पे, और जो आवाज, चीखो पुकार कुछ नहीं हुआ? नहीं, वहाँ पे ज़्यादा बंदे थे नहीं, इसलिए किसी को किसी की आवाज़ आई नहीं, किसी को पता नहीं चला। अच्छा अच्छा, फिर आपको ये ख्याल कैसे आया, क्योंकि उस वक्त तो इंसान जिस गहमा गहमी में होता है, आपको कैसे इस बात का ख्याल है कि फादर को फ़ोन करे? सभी एक दूसरे को, अपनी फैमिलीज वगैरह को कॉल कर रहे थे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन था नहीं, बाहर वाले कॉल उठा नहीं रहे थे। हम लोगों ने फिर फादर को ही कॉल करी, इसके अलावा हमारे पास कोई सपोर्ट ही नहीं थी कि हम जिसको कॉल करें वो आपको इस ये टाइम पे। कैसे पता था कि फादर कुछ कर लेंगे, या कुछ ना कुछ, मतलब एटलीस्ट उनको इत्तला ज़रूर दे दी थी? हर प्रॉब्लम में यही साथ आते हैं, हर जगह, हर भले कोई सी छोटा सा मामला हो या बड़ा मामला हो, ये सबसे पहले कॉल उठाते हैं, तो इन्हीं को कॉल करी थी। ठीक है, अब मुझे बताइए आमिर के जिस वक्त आप इनकी कॉल आई, आपका रिएक्शन फर्स्ट क्या था? फर्स्ट ये था, मैंने हो सकता है छोटी मोटी कोई गाड़ी आपका नहीं इतना, आपको लग रहा था इस कुछ तरफ ऐसा? नहीं था मेरा, ये था कि मैं समझा गाड़ी खराब होगी बाइक पे जिस पे ये जाता है, बस यही होगा। नॉर्मली आप कब जाते हैं घर? ये फजर की नमाज के बाद कभी 7 बजे कभी 6 बजे। अच्छा। जब मैं ऑफिस तो मैं जाता हूँ कोई 11 बजे कभी 10 बजे। तो जब मैंने ये देखा एकदम कॉल फजर से पहले ये कोई कॉल आ गई है, आने से पहले इसकी तो कोई प्रॉब्लम हो गई, बाइक की शायद कोई प्रॉब्लम है। जैसे अटेंड करा तो इतनी देर में पता चला कि थोड़ा घबरा के बात कर रहा था कि ऑफिस में आग लग गई है बाबा, मेरे पास इधर निकलने की कोई जगह नहीं है। हम लोग एक रूम के अंदर आ गए, कुछ ऑफिस के लड़के हैं मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ ऑफिस के लड़के भी हैं। तो मैंने कहा बेहतर है, मैंने उसको तसल्ली दी, मैंने शायद घबराया नहीं, मैं पहले समझा कि छोटी मोटी है, मैंने कहा बुझा नहीं सकते, कह रहा नहीं बहुत ज़्यादा है, इतनी है कि हमसे ऑक्सीजन नहीं लिया जा रहा। फिर मेरे को अंदाज़ा हुआ कुछ ज़्यादा है। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत ताकतवर है, और अल्लाह ताला अपने बंदों को, अपने फरिश्तों को ही ज़मीन पे भेजता है जो उनकी मदद करते हैं। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि जो लोग अपनी मदद आप करते हैं वही ज़िंदगी में कामयाब भी होते हैं, चाहे कितने ही आपको सहूलियात मैसर हों या सहूलियात मैसर ना हो। हमारे मुल्क में या रेस्क्यू करने वाले जो लोग हैं उनके पास किस चीज़ का फुकदान है, क्या वो बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सकते, क्या वो बेहतर टाइमिंग्स नहीं दे सकते, क्या वो बेहतर तौर पर जो टाइम मैनेजमेंट है उनकी नहीं है, क्या उनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जो कि किसी टीम की या किसी रेस्क्यू करने वाले की होनी चाहिए। तो फिर उस टीम या उस महकमे का काम क्या है अगर वो वक्त पे वहाँ नहीं पहुँचते? हमने बाहर भी बहुत सारी जगहों पे देखा है कि चाहे कबूतर भी किसी दरख्त पे फंस जाए या बिल्ली किसी खिड़की में फंस जाए तो उसको क्विकली टीम्स जो है वो रेस्क्यू करने आ जाती है। तो हमारे मुल्क में आखिर इन सारी चीज़ों का इतना फुकदान क्यों है कि अगर कोई आफत आ भी जाए या कहीं पे कोई ऐसी मुसीबत आ भी जाए तो टीम्स नहीं पहुंचती, और अगर टीम्स किसी तरह पहुंच भी जाएं तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ ही नहीं होती जिससे वो उन लोगों को रेस्क्यू कर सके, उनको निकाल सकें। ये हमारे मुल्क का शायद अलमिया है कि अभी तक हम उस जगह पे पहुंच नहीं पाए, या फिर उन इदारों का जो उनको ऊपर से देख रहे हैं। हम इसी के ऊपर बात करें कि एक आम आदमी के अंदर किस किस्म की खुदादाद सलाहियतें होती हैं जिसके ऊपर वो उनके ऊपर यकीन रखे और अल्लाह पे भरोसा करके बाकी लोगों की ज़िंदगियों को महफूज करने निकलता है। आमिर साहब, जी। अब आप मुझे बताइए कि जिस वक्त ये सिचुएशन हुई, उन्होंने कॉल किया, आप वहाँ पहुँच भी गए, आपने देखा कि जो रेस्क्यू टीम है वो कुछ कर नहीं रही है, उनका जो काम था वो ऑथेंटिक ही नहीं था, वो कि उनको नॉलेज ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि जाना कहाँ से, एंट्री कहाँ से, बेसिकली लोग किस तरफ है, नहीं इस चीज का इल्म नहीं था। ठीक है, उनको ये इल्म था कि आग लगी हुई है, हाँ। लोग फंसे हुए, किधर फंसे हुए। तो जब आप गए तो वो काम क्या कर रहे थे? वो सिर्फ नीचे खड़े हुए ये देख रहे थे कि क्या करना क्या है, उनके तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। लोग ना उनको बता पा रहे थे, वो सिर्फ अपनों से बातें कर रहे थे या रेस्क्यू टीम वाले या मदद के तौर पे अपने रिश्तेदारों से। फिर आपने उनको क्या बताया?
मेरे जो समझ में आया मैंने वो किया। फिर मेरे समझ में यही आया, मैं ना अपने भाई को फ़ोन करूँ ना किसी को रेस्क्यू को फ़ोन करूँ। पुलिस को कॉल करी 15 पे, तो मुझे सिर्फ उन्होंने एक जवाब दिया, 50 इससे पहले 50 कॉल अटेंड कर चुके हैं, मजीद कॉल के लिए आपको टेंशन नहीं लें, आपके पास रेस्क्यू टीम मौजूद हो जाएगी, बस हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ा वेट करें। मैंने कितना वेट करेंगे? बच्चा मुझे फ़ोन करके कह रहा हमारे पास 30 मिनट है, 25 मिनट, बाबा ऑक्सीजन इससे ज़्यादा नहीं है, लोग गिर रहे हैं रूम के अंदर। तो इससे क्या जाहिर होता है कि अब बाप क्या करेगा? फिर आपने क्या किया फौरी तौर पे? मेरे जो जहन में आया, मैंने रेस्क्यू टीम से बात किया, मैंने आपने कुछ रास्ता निकाला? उन्होंने कहा हमारे तो समझ में नहीं आ रही जाना कहाँ से, लोग तो कहाँ मगर जो पर हैं? मैनेजमेंट थी टीम की, जो उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट होती है ना, और एक अमला होता है जो कि मेंटेनेंस कर रहा होता है, वो अमला कहाँ था? वो अमला नहीं था, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड इंचार्ज था, उनका सुपरवाइजर कह लेंगे, इंचार्ज कह लेंगे। वो यूनिफॉर्म में नहीं था, एक शलवार कमीज में था, और वो हमें मिस गाइड कर रहा था काफी। अच्छा। अगर वो सही गाइड करता तो रेस्क्यू टीम खुद ही कवर कर लेती। अच्छा, सही। उसने अगर वो सही पहले से वो क्यों नहीं गाइड कर रहा था? उसकी क्या वजह? वजह ये थी, मॉल के अंदर दुकानें थी, उनको डर ये होगा, मतलब एक रास्ता होता है पीछे का और एक रास्ता होता है मॉल का, और एक हमेशा फायर के लिए एक ऐसा रास्ता होता है, एग्जिट होता है जहाँ से आप निकल सके। तो ये तीनों रास्ते कहाँ थे? ये बता ही नहीं पा रहा था ना, वो खुद अनपढ़ एक जाहिल आदमी होगा जो बता नहीं उसको पा बिल्डिंग की आउट कम्स का पता ही नहीं था कि कौन से एग्जिट्स हैं, कौन से, उसको कुछ नहीं पता था? नहीं, या वो बताना नहीं चाहता? सब पता था उसे, वो बताना नहीं चाहता पता था, सीधी वजह थी। अच्छा, क्या उसकी वजह ये हो सकती है कि उसने ये सोचा होगा टाइम, जो कि अब मैं, क्योंकि आपके बाद मैं उस टीम को भी बुलाऊंगी जिन्होंने ये किया है ना, आपके बुलाने से ज्यादा उनका बुलाना बनता है कि तुमने 11-12 जाने चली गई, उनकी वजह से गई, उनकी वजह से गई ना। अब मुझे ये बताइए कि उन्होंने वो जो मेन मॉल का दरवाजा था वो इसलिए नहीं खोला कि वहाँ पे जो कारोबारी हजरात की शॉप से कहीं वो लुट ना जाए, यही बात है, क्योंकि उनसे उनको ज्यादा पैसा उससे। और दूसरी बात ये कि उन्होंने उस वजह से वो जाने चली गई, यही बात है, कुछ इसी वजह से, वरना अगर वो खोलते तो कहीं ना कहीं एज मिल जाता। हाँ, बिल्कुल। रेस्क्यू टीम वालों को तो नहीं पता था कि रास्ता कहाँ है, कितने ऑफिस हैं, कौन सा ऑफिस कहाँ पर है, लेकिन गार्ड को तो पता था। प्लान बताना पड़ता है ना, प्लान होता है नक्शे का एक, वो होता है। खैर, अब आप मुझे ये बताइएगा कि ठीक है, फिर उसके बाद आप खुद फुली इक्विप्ड थे कि आप इस काम में हिस्सा ले रहे हैं, तो आपने अपनी सेफ्टी का क्या ख्याल? मैंने तो सिर्फ एक रेस्क्यू टीम को कहा, मेरे बच्चे से राब्ते में मेरा बच्चा, और ये फ्रंट वाली लिफ्ट मुझे बता रहा है जो मेरे को दिख रही है सामने, और उसके बराबर वाले रूम में। मैंने कहा यहाँ से तो मैं आराम से इजीली मूव कर सकता हूँ इधर, तो मेरे को सिर्फ आपकी हेल्प चाहिए, सीढ़ी चाहिए। हाँ, बिल्कुल आपकी हेल्प चाहिए। तो उन्होंने कहा आपको लिफ्ट आती है ऑपरेट खोलना? मैंने बिल्कुल आती है, टेक्नीशियन हूँ, मैं बिल्कुल टेक्नीशियन हूँ और बहुत पुराना हूँ, एक्सपीरियंस है मेरा। तो उन्होंने कहा आप हमारे साथ चलेंगे ऊपर? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा, सिर्फ आप मेरे को टूल्स दरकार करिएगा ताकि जिससे मैं काम कर सकूं। बाकी मुझे ज़रूरत नहीं है कोई ऐसी चीज़ की जिससे अभी आपके पास मौजूद ना हो। मैंने कहा कटर है? उन्होंने कहा है, हैमर है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। टॉर्च है? बोले बिल्कुल। बाकी मास्क की नीड थी, वो उसकी उन्हीं के वर्कर ने। अब वो कैप्सूल लिफ्ट थी जिसको तोड़ा था? जी। अच्छा। हाँ, और बहरहाल वो जब मैं उसको गिलास तोड़ा है के नीचे देखता हूँ तो वो नीचे के साइड पे बेसमेंट में पड़ी हुई थी लिफ्ट। अच्छा। यानी अपने ग्राउंड बेसमेंट में पड़ी हुई थी, वो ऑपरेट नहीं हो सकती थी क्योंकि लाइट ही नहीं थी उस बिल्डिंग में। बट ग्रिल जो थी लिफ्ट के बाद जब मैंने ओपन करा, 1 मिनट लगा मुझे पेचकस स्क्रू ड्राइवर से उसको लिफ्ट के डोर ओपन करने का, फ्लोर का 1 मिनट कोई मेरे को टेक्निक थी तो मैंने खोल लिया। अब सामने देखता हूँ ग्रिल लगी हुई, ग्रिल के जो ताले थे वो नेगेटिव साइड पे थे, अपोजिट साइड पे थे, जिसकी वजह से ये देख रही ना आप मेरे हाथ जख्मी हुए। तो फिर वो क्या किया फिर आपने? वो मैंने बस जो हैमर था मैंने पहले कटर मंगवाया, जब वो तक वो कटर लाया रेस्क्यू टीम का सलीम, तो मैंने हैमर से ग्रिल के तोड़ा है और ये फोल्ड करी है जालियां ऐसे के जहाँ से इतनी मोटी हाथ। ओह गॉड, फिर देख रही है ना निशानात मेरे, वो इसी वजह से हुए। अच्छा। वो लेफ्ट साइड पे। अच्छा। हाँ, जो मैंने हैमर 2-3 और क्लिप पे भी मारे थे तो वो क्लिप इतना टूटा, खुल गया? नहीं टूटा नहीं, क्लिप इतने बाहर है, रावल बोल्ट लगे हुए थे उसके अंदर, वो इतने क्लिप बाहर है। मेरे को अंदाजा था ये रावल बोल्ट है, ये नहीं टूटेंगे। अगर पिन होती तो मेरे को पता था मैं तोड़ सकता था। तो मेरा दिमाग था उस टाइम पे इतना टेक्निकल थे आप। हाँ, तो फिर मैंने कटर दरकार करा और कटर लगाकर मैंने 1 बाय 1 स्टेप उसको काट कर, और उसके पीछे जो अलमारी थी उसको धक्का देके ना रेस्क्यू टीम वाले के साथ मिलके अंदर गया। उसी तरह एक और गिरी थी, सेम बिल्कुल उसी तरह तोड़ते गए, काटते गए, काट के 2 कंटिन्यू करते हैं। बहुत ही एक जज्बाती और दिल को हिला देने वाली और बहुत ही एक नॉलेजेबल ये कहानी है जो कि वो बता रहे हैं। वो जो मोजे होते हैं ना, हम कभी कभी ये समझते हैं कि अल्लाह ताला अब मोजे नहीं करता, लेकिन हमारे पास वो दीदे नहीं है, वो बीनाई नहीं है जिसमें हमें नजर
नज़र आ रहा होता कि इस दुनिया में भी मोजज़ात होते हैं, लेकिन मोज़े हासिल करने के लिए भी अपने आप के साथ और उस अनथक मेहनत और वो भरोसा जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर होता है ना, कि जब हम रात को सोते हैं और हमें इस चीज़ का यकीन होता है कि हमें अल्लाह ताला सुबह उठाएगा और वो भी मोज़ा होता है, तो वो यकीन होना बड़ा ज़रूरी है। और यही यकीन मोहम्मद आमिर ने अपनी इस जुर्रतमंदाना जो उनका एक ये एक्शन था उससे किया। मोहम्मद आमिर, आप ही बता रहे थे कि जब आप 3rd फ्लोर पे पहुंचे और आपने जीने की जो शीटें थी वो तोड़ी, वो तोड़ के हैमर से फिर आप 4th फ्लोर पे गए, शीटें गिराई और फिर 4th फ्लोर की शीटें गिराई, और फिर आपका और सुभान का फासला कितना रह गया था, आप ये कैसे? मुझे ये देखें, मेरे को ये कंफर्म था कि इसने कहा लिफ्ट के बराबर, अब मेरे को लिफ्ट तक पहुंचना था। हाँ, वो लिफ्ट का दूरी कितनी थी? लिफ्ट की दूरी कितनी थी ये मुझे नहीं अंदाजा था, पर मेरे को ये अंदाजा जरूर था मैं सही रो में जा रहा हूँ। अच्छा, सही है, ठीक है। क्योंकि मेरे को जो मैंने दिमाग को जोर दिया था कि और लिफ्ट के बारे में बात करें, जहाँ से मैं आया हूँ तो मैं कितना रूटेड होके इस तरफ इधर जा सकता हूँ। जी जी। तो उसके अलावा मुझे यही अर्ज करा कि बेहतर यही है कि आमिर लेफ्ट पे ही जाया जाए। अब जितना अंधेरा था ना, तो सर्च लाइट से जो मैं देख रहा था, बस हैमर मैंने सलीम को पकड़ाया है, उसको मैंने कहा मेरे कंधे पे हाथ रखो, हाँ, ताकि वो मिस नहीं हो जाए। हाँ, ताकि मेरे से दिख ही नहीं रहा था, वो दिख ही नहीं रहा था ना कुछ। तो उसके अंदर मास्क भी जो हमारा लगा हुआ था, उसमें आवाज़ भी कोई कम जा रही थी, आपस में हम आवाज़ भी नहीं दे सक रहे थे, मास्क उतार रहे थे तो हमारा वो ऑक्सीजन नहीं मिलता। बहरहाल उससे बेहतर ये था, तो वो हैमर लेके मेरे साथ साथ चलता रहा। और उसने जब जैसे ही मैं एक गिलास देखता हूँ, शीशे का गिलास देखता हूँ, तो मेरे को अंदाज़ा होता है मैं करीब में हूँ लिफ्ट के, क्योंकि गिलास होता है एक बीच में, तो उसका अंदाज़ा हुआ कि मैं लिफ्ट के करीब में हूँ। अब जैसी मेरी लाइट देखी, ये लोग बच्चे खड़े हुए और इन्होंने रोटेट करी अपने मोबाइल की लाइट, तो मेरे को दिल को तसल्ली आई कि यहाँ पर है ये लोग कंफर्म। ठीक है, तो फिर इनसे मुलाकात हो गई। मुलाकात ऐसे हुई कि बस वो रेस्क्यू टीम वाले ने कहा आप पीछे हटो, मैं तोड़ू इसे। हाँ। उसने जैसे ही हैमर मारा तो इतना ब्रेक हो गया गिलास। हाँ। तो मैंने उसको रोका, नहीं मारो नहीं, इन्होंने लॉक किया हुआ बच्चों ने, ताकि इन्होंने खोले, ये खोलेंगे जो कपड़े फंसे हुए इन्होंने धुएं की वजह से। अच्छा, ठीक है, अब ये बाहर आ गए आप लोग, जो भी खैर उस वक्त तो आप भागे, लेकिन जो बाकी के 25 लोग थे वो कहाँ पे थे? नहीं आप बात नहीं समझी। जैसे ही इन्होंने डोर खोला है और सारे लोग उसी में थे। अब मैंने आवाज लगाई सुभान, पीछे था, ये छोटा था, वो जो बड़े लड़के थे पठान और बड़े माशाल्लाह कदार, वो पहले बस उन्होंने अपने कपड़े फाड़े हुए थे और वो गीले थे, नाक मुंह काले थे लोग। तो मैंने कहा बिल्कुल क्यों बना के इसी लेफ्ट साइड से आप जीने से नीचे उतरो। मतलब नजर नहीं आ रहा था कि ऐसे करके क्यों बना के कंधे पे एक दूसरे के हाथ रख के जाओ। बस वो ऐसे चलते गए हैं और 3rd फ्लोर पे पहुंचे। मैंने कहा जब तक मेरे को ये नहीं पता कि मैं आखिरी तक आप आ गए। फिर मैंने जैसे ही वो उतर रहे हैं, बस मैंने बच्चा मेरा दिखा और मैंने इसको बगल में लिया। मेरे को नहीं पता था इसके जूते में ज़ाहिर बस ये जब मेरे हाथ में आया तो मैंने बोला अब तो मैं इसको इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अल्लाह ने मुझे आपने इसको लिया, लेकिन जब जमीन पे आना बड़ा जरूरी था ना, क्योंकि उस वक्त तो टाइम इतना कम था। 3rd फ्लोर पे आ गए और जब जमीन पे आ गए, द सिचुएशन इज एक्चुअली ऑन द हैंड। उस वक्त आप क्या दिखा और क्या फील कर रहे थे? बस मैं ये कह रहा था मेरा बच्चा और दूसरों के बच्चों को देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, जो उनके माँ बाप रो रहे थे ना, मिल रहे थे, जिस तरह मैं इसको छोड़ उनको देख रहा था कि इतने परेशान। वो तो जाहिर सी बात है। इसके साथ मिल गया, भाई मिला, मेरे साथ ही था बड़ा बेटा, वो उससे मिला, वो उसको मिलके। और जो आप घर में जिन लोगों को छोड़ के आए थे, आपने फौरी क्या बताया उन्हें? बस वो मेरे साथ जो बच्चा था मेरा बड़ा, उसने फौरन फोन पे माँ से इसकी बात कराई कि मेरी बात मामा आ गया है, सुभान बात करे। उसने बात करी इससे रो के, फिर तसल्ली हो गई उसको। और क्या सेंस ऑफ अचीवमेंट था आपके पास जब आपने उस खुशी का, मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ कि वो जो एक किसी की जान बचाना, अपना बच्चा तो खैर होता ही होता है, लेकिन बाकी के सारे, और वो जो आपका जो एक ये, इसको हम ये कहेंगे ना कि ये एक ऑपरेशनल वर्क था और इसकी सक्सेस रेट कुछ भी हो सकता था। बिल्कुल। जब आपने उसमें फतह हासिल कर लिया, आप कामयाब हो गए, तो आपका सेंस ऑफ अचीवमेंट क्या था? मेरा सेंस ऑफ अचीवमेंट ये था कि मैं बस लेकर तो आगे हूँ और बाकी जो लोग हैं वो जो उस तरफ हैं उस तरफ और जो लोग, अच्छा उस दौरान आपको ये पता लग रहा था कि कितने लोग उसमें मजीद हैं, जाँ बहक हो चुके हैं और कितने अंदर हैं, ये पता था उस वक्त? नहीं, उस वक्त मेरे को इल्म नहीं था, बट
जो उसके बाद एम्बुलेंस वाले जो गए, 2 बॉडियां जो बेहोश लेकर आए थे या बॉडीज थी, जो भी कुछ कपड़े जले हुए थे, फटे हुए थे, वो तो सिर्फ मैंने इस चीज़ से अंदाज़ा लगा ये फॉल सीलिंग उनके ऊपर गिरी अच्छा, वो गिरा है फॉल सीलिंग की जो फॉल सीलिंग, हाँ। Yes, उसी अच्छा, में ये भी मुझे आग बताएं शॉर्ट कि सर्किट हुआ है। ठीक है, इनको तो आप निकाले, उसके बाद क्या आग भड़की, क्या हुआ उसके बाद? फायर फाइटर्स जो थे सिर्फ चिंगारी थी, आग बुझा शॉर्ट दी। सर्किट की शोले उठ रहे थे। अच्छा, बेसिकली जो इसका मतलब है कि ये धुआं भरने से हुआ है। ऐसा ही है, अच्छा। क्योंकि आग तो लगी है, आग के शोले नहीं थे? शोले नहीं थे। जब भी मैं पहुंचा था, जब इसके पास पहुंच रहा था डिग रोड ब्रिज से, जब मैं देख रहा था तो ब्लैक कलर के धुएं निकल रहे थे, वो भी बैक साइड से। ओके। तो मेरे को ये अंदाजा हुआ कि फ्रंट से तो कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ। ये सब बैक से हुआ है। वो जो कंफ्यूज कर रहा था वो इसी वजह से कर रहा था, यहाँ आग नहीं बैक से, पर वो उसको ये नहीं अंदाजा था कि फ्रंट से रास्ता है। अल्लाह ताला से आपने क्या फिर आने के बाद किस अल्लाह तरह का से शुक्र अदा करा, अल्लाह पाक तूने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मेरे को तो अंदाजा भी नहीं, और मैं इतना बड़ा काम करके आ गया। मैं तो समझो कोई छोटा सा काम है, पर बाहर बस आपके हाथों अल्लाह ने कराना था। सुभान। बिल्कुल। आपको आने के बाद आपको क्या फीलिंग आई? मतलब जाहिर सी बात है कि इंसान एक मौत और जिंदगी का ये एक सफर था जो आपके फादर ने माशाल्लाह एक एज अ हीरो बन के उन्होंने ये सारा, अल्लाह ताला ने उनके बस अल्लाह हाथ के से हाथ, कराना था और उनको इज्जत दिलवानी थी। इज्जत देने वाले अल्लाह की बेशक जात है, अल्लाह की अल्लाह ताला जात है। किसी किसी को चुनता है। आप कोई कुछ शक नहीं। कहिएगा। यही बात है, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ अपने वालिद साहब की वजह से ही बैठा हूँ। हाँ। उसके अलावा जो बाहर निकल के हम लोग दोस्त यार उन्हें गले मिले हैं, रोए हैं एक दूसरे को पकड़ के, हाँ। वो एक अलग ही, क्योंकि हम लोगों ने तो कल में पढ़ लिया था, हमें नहीं पता कि हम बच सकते हैं या नहीं बचेंगे, हमने सिर्फ अल्लाह पे उम्मीद रखी। उसके अलावा ये सब हुआ। चलें, नहीं बहुत अंदाजा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुभान आपका, मोहम्मद आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे कौम के लिए, आपकी जो मिसालें हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो ये प्रोग्राम भी देख रहे हैं और अपनी मदद आपके तरीके से, और हिम्मत मर्दा मदद खुदा, अल्लाह ताला भी उनका साथ देता है जिनका आप साथ देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूँ जो बहुत आम बात है, वो आम बात ये थी कि ये तो हमारे हीरोज़ हैं, आप भी बनिए हीरो अपने घरों के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए। किसी भी मसले में पड़े, लेकिन अपनी मदद आप करें और आप अपने आप को अल्लाह पे भरोसा रखते हुए आप अपने आप को कामयाबी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो आज तक के लिए आज का हमारा प्रोग्राम इतना ही था। न्यूज़ कैफ़े में मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ उज़्मा एजाज़ खान। पाकिस्तान जिंदाबाद।